Friends, welcome to Techify tutorial. So we are continuing in same playlist of Zomato practice, and today we are here with a new problem, and this problem is quite good. So you could see there is a table where you have the information like order ID, restaurant ID, city, amount, and order date. Now you have to write a query to find the rank of each restaurant based on the total revenue within each city, right? So there are so many city, right? For example, here we have only two cities, New York and London. And in each city, you have so many restaurants, right? So if, for example, in New York, you have restaurant 101, 102, and 105. So these three restaurants are there in New York. Now, what you have to find is you have to find the rank of all these restaurants, that is restaurant 1, 2, and 5 based on the amount column, right? And same will do for the London city as well, right? So same is the go with the London and other city as well, right? Here in this table we have only two city. So let's say we have 10 cities. So out of all those 10 city, right, for each city we have different restaurant, and in and we have to give a rank to that restaurant within that city, right? We don't have to give the overall rank. We have to give the rank based on that city. Now, let's go back to Workbench. Now, here, if you could see, there is a table called restaurant payment, right? So, जब भी import करना था, तो मैं इसका name दे दिया restaurant payment. So, select all from restaurant payments, and if you click enter, you will getting the um, same table, right? This table is same. तो यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है, रेस्टोरेंट पेमेंट्स. नाउ अभी करना क्या है, पहले तो हमें क्या करना है, सीटी को, जितने भी सीटी है उनके सबके अलग अलग बकेट चाहिए, एंड देन उन सीटी के अंदर जाके फिर देखना है भाई कितने रेस्टोरेंट है, जो भी रेस्टोरेंट है उसका कितना अमाउंट है, टोटल रेवेन्यू क्या है, उस रेवेन्यू के बेसिस पे वी हैव टू गिव देम रैंक. हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम? So what we'll do is, see here, we want restaurant ID, we want CT, we want amount, and and what we have to do is we have to write here, we have to use here rank function. There is something called rank function which which we have to use here. ठीक है, तो रैंकिंग के लिए हमारे पास दो तीन फंक्शन है. फॉर एग्जांपल रैंक, रो नंबर एंड डेंस रैंक. सबका अलग अलग यूज केस है, राइट? यहाँ पे हम रैंक फंक्शन यूज कर रहे हैं, एंड ऑर्डर ओवर ओवर क्लॉज में वी आर हियर पार्टीशनिंग. तो पार्टीशन पार्टीशन बाय ऑन सीटी. भाई हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो हमारा कॉलम सीटी है इसके बेसिस पे आप पार्टीशन कर लो, बेसिकली ग्रुप बाय कर लो, एंड देन ऑर्डर बाय ऑन अमाउंट कॉलम इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया उसको रैंक 1 मिलेगा, एंड जो कम किया तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, राइट? एंड देन वी हैव टू क्लोज दिस एंड गिव द नेम एज रैंक, RANK, from this restaurant. So if you run this, now see, so there is a city called London, and if you see this restaurant 104, total revenue generated by restaurant 104 is 250. तो इसलिए उसका रैंक 1 मिला है. अब देखो केवल लंदन, इफ यू कुड सी ओनली लंदन सिटी, यू हैव टू रेस्टोरेंट, 103 एंड 104. अभी 104 का जो रेवेन्यू जनरेटेड है वो ज्यादा है 103 से, इसलिए उसको रैंक 1 मिला, एंड सिमिलरली 103 को रैंक 2 मिला.
Similarly, in the New York City, we have 102 getting rank 1 because total revenue generated by 102 is highest and that is 300. तो बाकी सबका भी accordingly मिला है आपको rank. So this is how the rank function works. But here is the catch. यहाँ पे rank की जगह पर अगर dense rank यूज करो तो ज़्यादा बेटर है. क्यों भाई? अगर हो सकता है कि किसी दो सिटी का, हो सकता है किसी, मान लो न्यूयॉर्क में 3 रेस्टोरेंट है, राइट? एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल ये 102 और 101 का दोनों का 300 अमाउंट है. नाउ 300 इसको देना चाहिए रेस्टोरेंट वन, सॉरी रैंक 1 देना चाहिए 300 वाले को. रैंक 1 ही मिलेगा जिसका 300 है. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 101 का भी 300 अमाउंट है, से फॉर एग्जांपल, राइट? तो इसको भी रैंक 1 ही मिलना चाहिए. नेक्स्ट है 100. तो अभी इसको क्या मिला? 1 1, राइट? सो इफ यू सी हियर, दिस इज दिस इज दिस इज 1, दिस इज 1. नेक्स्ट वाले को क्या मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए. बट अगर आप रैंक फंक्शन यूज करोगे तो नेक्स्ट वाले को क्या मिलेगा? 3 मिलेगा. क्यों? ये स्किप करता है नंबर, राइट? तो 1 1 के बाद 3 आएगा, 1 1 के बाद 2 नहीं आएगा. वहीं अगर आप डेंस रैंक यूज कर रहे हो तो दैट, आई मीन इफ यू आर यूजिंग डेंस रैंक, it will not skip the rank, right? So if it is 1 1, next rank will be 2. So you can use here, क्योंकि सबका क्या था, अमाउंट क्या था, डिफरेंट था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. बट अगर अमाउंट सेम होता है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे यही करना था आपको, रैंक फंक्शन यूज करना था एंड ओवर क्लॉज में आपको बताना है कि भाई ये रैंक किस बेसिस पे आपको देना है. अभी रैंक किस बेसिस पे देना है आपको? पहले तो सिटी के पार्टीशन करना है. जितनी भी सिटी है उसका पार्टीशन करो, उनका ग्रुप बनाओ, और फिर उस सिटी में आप जो अमाउंट कॉलम है उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है. जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटेड है, जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है सिटी और रेस्टोरेंट, उसका रैंक क्या देना है? 1 देना है. So that's it about this problem, guys. This was quite good problem, and I hope you understood this. So we'll meet in the next video with some more problem. Thank you.